Okay, so today we'll be starting with the concept of conductance. Okay, and in previous lecture we studied that how resistance works. Okay, resistance is basically हमारा जो circuit है वो circuit में बहुत सारे atoms randomly spread है, so electrons cannot flow that easily. Okay, because of which these electrons they will stop in between. That is called as resistance. तो resistance जितना ज़्यादा होगा current उतना कम होगा. The inverse of the reciprocal of the resistance is called as conductance. तो रेजिस्टेंस हमको ये बताता है कि करंट को कितना रोका जा रहा है, कंडक्टेंस हमको उल्टा बताएगा कि करंट को कितना अलाउ किया जा रहा है. सो इफ एनी वायर इज हैविंग अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ कंडक्टेंस, मतलब इट इज अ गुड कंडक्टर, वो आराम से कंडक्ट करने दे रहा है. ओके, इट इज गुड कंडक्टर. और लो कंडक्टेंस रहेगा तो फिर बैड कंडक्टर. सो दिस इज हाउ वी कैन मेजर द कंडक्टिविटी ऑफ अ वायर यूजिंग द यूनिट कंडक्टेंस. कंडक्टेंस को हम लोग बोल सकते हैं ओम्स इनवर्स बिकॉज इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ ओम, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस. Or we can also say Siemens. Siemens is the unit of conductance. Okay. Next we'll study the IV graph. IV graph में क्या दिया हुआ है? This graph basically proves the Ohm's law. Okay. Now yesterday, last time हम लोगों ने Ohm's law क्या पढ़े थे? The statement of Ohm's law was that, एक second, Ohm's law का statement निकाला था मैं. हाँ. According to the Ohm's law, the current flowing in the conductor is directly proportional to the potential difference applied across its ends. Okay. So basically it means that the current flowing, important word क्या है? Current is directly proportional to potential difference. तो जितना करंट बढ़ेगा उतना, जितना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा उतना करंट भी बढ़ते जाएगा, प्रोवाइडेड दैट द वायर इज एट सेम टेम्परेचर. वायर का सब कुछ सेम है तो वो तो अंडरस्टूड है. तो ये हम लोग प्रूव कर सकते हैं यहाँ पे यूजिंग द आईवी ग्राफ. In this IV graph, I'm taking a wire. Suppose you take any wire, copper wire, iron wire, any wire. In that wire, apply different voltages to it. Like यहाँ पे 1 volt है, यहाँ पे 2 volt है, यहाँ पे 3 volt है, यहाँ पे 4 volt है. And once applying different voltages, we also try to calculate the amount of current flowing through it. You can calculate the amount of current flowing through a conductor using ammeter. Ammeter एक मशीन है, उससे हम लोग करंट मेजर कर सकते हैं. तो ammeter लगा के मैं करंट मेजर कर रहा हूँ, तो मुझे क्या दिखाई देता है? मुझे ये दिखाई देता है कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे करंट भी बढ़ते जा रहा है. आई ऑब्टेन अ स्ट्रेट लाइन विच इज इंक्रीजिंग, विच इज गोइंग अपवर्ड, नॉट डाउनवर्ड. So this proves my Ohm's law, which states that as the potential difference goes on increasing, the current will also go on increasing in a metallic conductor, provided that the temperature and everything, all other physical condition are constant. Okay, next आएगा slope. अच्छा, स्लोप का मतलब क्या है? डेल्टा आई. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेल्टा आई? डेल्टा आई मतलब चलो यहाँ पर पकड़ लो, करंट है 1 एम्पियर ये पर्टिकुलर पॉइंट पे, ये पॉइंट पे, ठीक है. और थोड़ा ऊपर जाएंगे, यहाँ पर करंट हो गया जब सपोज फॉर एग्जांपल 5 एम्पियर. तो डेल्टा आई क्या रहेगा? 5 - 1. इट बेसिकली टेल्स अस कि कितना चेंज हो रहा है. तो फाइनल 5 है, इनिशियल 1 है, तो 5 - 1 क्या हो जाएगा? डेल्टा आई हो जाएगा. ओके. और सेम यहाँ पर जो करंट था उसका वोल्टेज फॉर एग्जांपल पकड़ लो, यहाँ पर 2 था और जहाँ पर 5 था वहाँ पर पकड़ लो 10 था वोल्टेज. तो डेल्टा वी विल बी इक्वल टू हाउ मच? 10 - 2 which is equal to 8. So delta I will be the change in current and delta V will be the change in voltage. This delta I upon delta V is called as the slope of the IV graph. Okay, slope of the IV graph is delta I by delta V and which is inversely proportional to the resistance. क्योंकि resistance क्या होता है? V by I होता है ना? resistance V by I होता है. यहाँ पे क्या है? यहाँ पे I by V है, तो resistance का reciprocal 1 upon R. ओके. तो ये बेसिकली हमारे वही ओम्स लॉ को स्टेट करने के अलग अलग तरीके हैं. लिमिटेशन ऑफ द ओम्स लॉ, कहाँ कहाँ पे ओम्स लॉ काम नहीं करेगा? फर्स्ट, ओम्स लॉ इज ओबेड ओनली व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट, अदरवाइज एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, तुम अगर वोल्टेज ही बढ़ाते जाओ करंट नहीं बढ़ेगा. टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ने पे क्या हो जाता है कि अच्छे से अच्छा कंडक्टर भी बैड कंडक्टर बन जाता है. ओके, सो वी डोंट वांट टू इंक्रीज द टेम्परेचर. ओके, दैट इज द रीजन व्हाई यू विल सी कि बहुत सारे मशीन्स में, कंप्यूटर में, लैपटॉप में, बहुत सारे मोबाइल में कूलिंग मैकेनिज्म होता है ताकि वो कंडक्टर को, सब मशीन्स को कूल रख सके. तुम्हारा जो टीवी वो सब एसी वगैरह है वहाँ पर कूलिंग हीट सिंक रहता है, तो हीट सिंक क्या करता है? सारा का सारा हीट निकाल देता है उस मशीन में से. वी डोंट वांट आवर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस टू बिकम वेरी हॉट बिकॉज एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस द रेजिस्टेंस विल ऑल्सो इंक्रीज. तो वोल्टेज भी बढ़ाया जाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, करंट कम ही हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट, दिस इज द सर्किट गिवन. Experimental verification of the Ohm's law. How do we experimentally verify? So first of all, we have to connect the circuit. यहाँ पे क्या क्या चीज़ है? First of all, this is my resistance. इस resistance को हम लोग अलग अलग वैल्यू से कैलकुलेट करेंगे. Resistance के across यहाँ पे ये क्या लगा है? ये V जो है इसको हम लोग बोलते हैं voltmeter. Voltmeter is basically used to calculate potential difference. Remember that. ठीक है, ये voltmeter से मिलेगा potential difference और ये A ammeter से मिलेगा हमको current.
तो A ammeter is used for measuring current and B voltmeter is used for measuring voltage. Remember that. Okay. ये की है, की बेसिकली वो जो स्विच ऑन स्विच ऑफ, ये स्विच है, ये की को हम लोग ऑन ऑफ करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. यहाँ पे रियोस्टैट है. रियोस्टैट बेसिकली क्या होता है? इट्स रियोस्टैट इज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस. ओके, वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग अलग अलग रेजिस्टेंस 2 3 4 5 ओम सेटअप कर सकते हैं. तो सेटअप करने से क्या होता है कि हमारा जो ये है क्या बोलते हैं, करंट को हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे जो करंट सर्किट से आ रहा है. रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो करंट कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम करेंगे तो करंट बढ़ जाएगा. तो इन ऑर्डर टू कंट्रोल द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट आई कैन यूज अ रियोस्टैट. ओके, तो रियोस्टैट एक जगह पे फिक्स करेंगे और एक जगह पे फिक्स करके हम एक कांस्टेंट करंट सर्किट में से फ्लो करेंगे. और ये बी क्या है? ये बी हो गया बैटरी. यहाँ पे 2-3 सेल हमने लगा दिए साइड बाय साइड. तो बेसिकली ये सेल क्या करेगा? ये करंट प्रोवाइड करेगा इन द सर्किट. नाउ रिमेंबर, करंट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्लोइंग फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल. तो पॉजिटिव टर्मिनल में से देखो एरो बाहर जा रहा है. ये एरो पूरा ऐसा करंट फ्लो होके पूरा रास्ता कंप्लीट करके वापस नेगेटिव टर्मिनल में आके पहुंच जाएगा. तो ऐसा करके माय सर्किट करंट फ्लोज थ्रू द एंटायर सर्किट. ओके फाइन. तो ये हो गया हमारा क्या बोलते हैं पूरा इलेक्ट्रिक सेटअप. आई होप यू अंडरस्टूड द इलेक्ट्रिक सेटअप. ओके, नेक्स्ट आता है प्रोसीजर. प्रोसीजर में बेसिकली व्हाट विल डू इज दैट वी विल स्विच ऑन द सर्किट. ओके, रेजिस्टेंस में एक रियोस्टैट जो मैं एक वैल्यू पे फिट करूंगा. ठीक है, तो एक वैल्यू पे अगर मैं फिट कर रहा हूँ तो फिर एक करंट जा रहा है. सपोज इतना वैल्यू मैंने इतने पे मैंने फिट कर दिया. जैसे रेगुलेटर का कैसा होता है फैन का तुम 1 पे स्पीड करोगे तो फैन इतना घूमेगा, 2 पे स्पीड करोगे तो फिर फैन थोड़ा और फास्ट घूमेगा. वैसे रियोस्टैट में मैं करंट को कम ज्यादा कंट्रोल कर सकता हूँ. तो मैंने रियोस्टैट एक सेट करके आई एम अलाउइंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट टू फ्लो थ्रू द सर्किट. आई कैन कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम वोल्टमीटर. आई कैन कैलकुलेट द एमीटर करंट फ्रॉम द एमीटर. ओके, तो बेसिकली हम करंट फिक्स करके रियोस्टैट फिक्स करके पहले करंट का रीडिंग ले रहे हैं, वोल्ट मीटर का रीडिंग ले रहे. देन बाय डिवाइडिंग V अपॉन I, ये वोल्ट मीटर को एमीटर से डिवाइड करो, हमको रेजिस्टेंस का वैल्यू R का वैल्यू मिल जाएगा. ठीक है, ऐसा करके करके तुम अलग अलग 4-5 रीडिंग लो. बिकॉज एट if we conduct one reading one time there is a very good chance for mistake to happen. Okay, so we don't want mistakes to happen again and again. So what we'll do is that we will take one reading 3 4 5 times. Okay, तो 5 टाइम लेने के बाद हमें एक अराउंड एक एवरेज वैल्यू मिल जाएगा R का. तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे R. तो 4 बार चेक करने के बाद वो सर्किट जो है वो इतना मिस्टेक प्रोड्यूस नहीं करेगा. ठीक है, फिर तुम अलग अलग आई फिट कर सकते हो. यू कैन चेंज द वैल्यू फॉर आई बाय चेंजिंग द रियोस्टैट. ओके, रिमेंबर दैट. वो रियोस्टैट ऊपर इसके लिए दिया गया है, रियोस्टैट कम करके मैं करंट को बढ़ा सकता हूँ. तो यहाँ पे आई चेंज होगा तो वी भी चेंज होगा. तो वी अपॉन आई का रेशियो निकालो. फिर वापस यहाँ पे आई चेंज करो, वी चेंज होगा, वी अपॉन आई का रेशियो निकालो. नो मैटर व्हाट इज द वैल्यू फॉर द करंट एंड वोल्टेज, रेशियो निकालने के बाद डिवाइड करने के बाद यहाँ पे वैल्यू आर का वैल्यू हमेशा सेम ही आ रहा है. ओके, जैसे अगर करंट 2 है और पहले रीडिंग में सपोज अज्यूम करो कि करंट 2 आया और वोल्टेज का रीडिंग क्या आया, 4 आया. तो 2/4 क्या हो गया? 2/4 हो गया, सॉरी वोल्टेज 4 आया, यहाँ पे 4 आया. एक सेकंड, लेट मी जस्ट राइट इट डाउन ओवर हियर. फर्स्ट तुमने रियोस्टैट सेटअप किया. सेटअप करने के बाद अज्यूम करो कि यहाँ पे पहले रीडिंग में वोल्ट मीटर में कितना है, 4 रीडिंग बता रहा है. ठीक है, और यहाँ पे कितना रीडिंग दे रहा है? यहाँ पे रेड 2 रीडिंग, एमीटर पे 2 रीडिंग दे रहा है. तो 4 डिवाइड बाय 2 रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या मिलेगा? 2 मिलेगा. फिर तुमने क्या कर दिया? करंट को बढ़ा के 2 से बढ़ा के 4 कर दिया. तो अगर 2 से बढ़ा के 4 कर दोगे करंट को तो तुम्हें यहाँ पे दिखाई देगा कि वोल्ट भी बढ़ के 4 से बढ़ के 8 हो जाएगा. ऐसा बढ़ेगा वो कि 8/4 विल रिमेन कांस्टेंट, दिस विल स्टिल कम टू ओनली. इफ यू इंक्रीज योर करंट फर्दर, इफ यू मेक इट लाइक 10, ओके, बहुत बढ़ा दिया तुमने, 10 कर दिया, 4 से बढ़ा के बहुत ज्यादा कर दिए, तो तुम देखोगे कि वोल्ट मीटर का भी रीडिंग चेंज हो जाएगा और उसके ऊपर रीडिंग कितना आएगा? 20 आएगा. तो यहाँ पे 20 हो गया, तो 20/10 कितना रहेगा? फिर भी वो 2 ही रहेगा. So it doesn't matter. We have now experimentally proved the Ohm's law. It doesn't matter what is the value for voltage and current. As the voltage goes on increasing, the current will also go on increasing, and the value for our resistance will remain constant. Okay. Hence, it is also an experimental verification of Ohm's law. Okay. I hope that you understood the concept. और जब तुम एक्चुअली में ये करोगे ना, अगर स्कूल में ये एक्सपेरिमेंट अगर कराए, सो लेट मी जस्ट टेल यू वन मोर थिंग. रेजिस्टेंस का वैल्यू तुम्हें कभी भी होल नंबर में नहीं मिलेगा. You will never get exactly 2, exactly 4. You will always get something like a decimal number, like 2.465 ऐसा करके. Then you will take it as approximately 2.5. ठीक है, या तो फिर तुमको ऐसा मिलेगा 1.99999. तो तुम क्या उसको लोगे? उसको लोगे तुम 2 लोगे. तो you will never get a exact dot value in experiment in practical, but we will approximately take it to the nearest value, and resistance का value भी approximately same ही आएगा, like 1.99, 2.1, 1.98, 2.02.
तो मैं क्या बोलूंगा कि ये सबका एवरेज निकालने पे आंसर 2 ही आएगा। तो उसके बाद मैं क्या बोलूंगा कि माय रेजिस्टेंस वैल्यू इज हाउ मच 2। ओके फाइन, इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन टाइप इन द चैट सेक्शन। ओके नेक्स्ट वीआई ग्राफ। अब जो वीआई ग्राफ मैंने लास्ट टाइम स्टडी किया था वैसा ही, एज द वोल्टेज गोज ऑन इंक्रीजिंग द करंट विल आल्सो गो ऑन इंक्रीजिंग। डेल्टा आई इज व्हाट, सपोज आईसी इज द फाइनल करंट एंड आईडी इज द इनिशियल करंट एंड वीए इज द फाइनल वोल्टेज एंड वीबी इज द इनिशियल वोल्टेज। तो मैंने करंट आईडी से बढ़ा के आईसी कर दिया, तो वोल्टेज वीबी से बढ़ के वीए हो गया। तो डेल्टा आई क्या रहेगा, आईसी माइनस आईडी, और डेल्टा वी क्या रहेगा, चेंज इन वी क्या रहेगा, वीए माइनस वीबी। तो तुम डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई का जब तुम रेशियो लोगे तो तुमको स्लोप ऑफ द ग्राफ मिल जाएगा। ओके and resistance will be equal to how much delta V by delta I. So this is how we can calculate the value for resistance of an unknown circuit. एक unknown value दे देगा तुमको, एक चीज वैल्यू दे देगा तुमको, तो तुम उसका भी unknown value का resistance का value तुम निकाल सकते हो। Okay, now next we will study ohmic resistors. Ohmic resistors are those resistors, as I tell you name suggest, ohmic resistors जो ohms law को follow करता है, उसको हम बोलेंगे ohmics. Example क्या है, nichrome, copper sulfate solution, copper electrodes, okay, dilute sulfuric acid at constant temperature, they are given over here. Okay, so these are basically what, these are ohmic resistors. Okay, for the resistors, the graph plotted for the potential difference V against current I is a straight line. We will always get delta V upon delta I as a constant value R. नॉन ओमिक का मतलब क्या होता है, जैसा नाम बता रहा है कि वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता, उस पे हमको स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा वी आई का, हमको वहां पर एक कर्व लाइन मिलेगा ऐसा, डेल्टा वी बाई डेल्टा आई मिलेगा ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम बोलेंगे कि those materials which do not follow Ohm's law are called as non-ohmic resistors. उसका एग्जांपल क्या रहेगा, एलईडी। जो एलईडी पता है वो साइन बोर्ड के ऊपर लगाते हैं लोग, घर पे एलईडी लाइट लगाते हैं, ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलईडीज, सोलर सेल, जंक्शन डायोड, ट्रांजिस्टर्स, फिलामेंट्स ऑफ द बल्ब, दे डोंट फॉलो Ohm's law. If you increase the voltage then current will not go on increasing. Okay, मतलब current will also increase but the relation is not a straight line, relation is a curve. Okay, तो बहुत ज्यादा वोल्टेज बढ़ाने पे करंट थोड़ा बढ़ता है। ठीक है, अब देखो यहाँ से यहाँ पे, इफ यू कंसीडर जस्ट दिस पार्ट, यहाँ पे देखो इतना वोल्टेज बढ़ाने पे इतना करंट बढ़ गया। देखो स्टार्टिंग में लाइन देखो ऐसा जा रहा है, बट इफ आई ऑब्जर्व दिस पार्ट, जस्ट दिस पार्ट, तो यहाँ पे मैंने वोल्टेज यहाँ से मैं यहाँ लेके गया, देखो लोअर पार्ट से हायर पार्ट, बट लेफ्ट टू राइट कितना गया, लेफ्ट टू राइट सिर्फ थोड़ा ही गया। तो इनिशियली फॉर अ वेरी स्मॉल चेंज इन वोल्टेज आई एम गेटिंग अ वेरी लार्ज करंट, but finally at the end when I increase the voltage then the current is increasing very slowly. So the relation is not a straight line, the relation is actually a graph, a curve, hence we can say that they are non-ohmic conductors. Okay, understood, fine. Distinction between दोनों का दिया है, वो तो जो मैंने एक्सप्लेन किया था वही दिया हुआ है। ठीक है, ओमिक रेजिस्टर का क्या मतलब रहेगा, ओमिक रेजिस्टर का मतलब ये रहेगा कि इट ओबेज द ओम्स लॉ, इट डज नॉट ओबे द ओम्स लॉ, ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, ग्राफ इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, the slope of VI graph is same, the slope of VI graph will not be the same, and hence नीचे के examples. Next we'll study factors affecting the resistance. उसमें देखो ये 4 फैक्टर आता है, nature of the conductor, length of the conductor, thickness of the conductor and temperature of the conductor. ठीक है, ये चारों अभी आज कर लेते हैं, then we'll continue tomorrow. Okay, first क्या आता है, material of the conductor. Okay, अभी देखो अगर हम गोल्ड लेंगे तो गोल्ड इज अ वेरी गुड कंडक्टर ना, तो गोल्ड से अगर मैं करंट पास करने जाऊंगा तो मुझे बहुत हाई वैल्यू ऑफ करंट मिल जाएगा, उसका रेजिस्टेंस तो नेचुरली ही लो रहेगा क्योंकि उसका मटेरियल ही वैसा है। ऑन द अदर हैंड अगर गोल्ड के बदले अगर मैंने ये लिया क्या बोलते हैं ग्लास, तो ग्लास में से तो करंट फ्लो नहीं होता, हम कोई भी ग्लास का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं देखते, तो वो मटेरियल ही वैसा है कि उसमें से करंट फ्लो नहीं हो सकता। तो इट डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल, सम आर गुड कंडक्टर्स एंड सम आर बैड कंडक्टर्स। ओके, नेक्स्ट लेंथ ऑफ द कंडक्टर, जितना तुम लेंथ बढ़ते जाओगे उतना ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ते जाएगा। ठीक है, अज्यूम करो कि तुम्हारे पास है एक वायर जिसका लेंथ है 10 सेंटीमीटर और एक और वायर है उसका लेंथ कितना है, उसका लेंथ है 1000 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर से वायर तुमको से अगर करंट फ्लो करना है तो फिर तुम एक छोटा मोटा सा एक बैटरी लेकर आके तुम उसमें से करंट फ्लो करा सकते हो, बट 1000 सेंटीमीटर मतलब 10 मीटर, तो ये अच्छा खासा लंबा वायर है। यहाँ पे तुम एक छोटा सा अगर बैटरी लगा दोगे तो वहाँ पे से इतना करंट जनरेट नहीं होगा। बेसिकली इसका अलग एक मतलब बताओ मैं तुमको, अगर सपोज यू ड्राइविंग अ कार, ओके, जितना एनर्जी तुमको 1 किलोमीटर कवर अप करने लगेगा उससे कई गुना ज्यादा एनर्जी तुमको 100 किलोमीटर कवर अप करने लगेगा। ओके, तो अगर 100 किलोमीटर कवर अप करना है देन रेजिस्टेंस विल आल्सो इंक्रीज, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर द करंट टू गो थ्रू द एंटायर सर्किट, the resistance is directly proportional to length. As the length increases the resistance will also increase, as the length decreases the resistance will also decrease. Okay, so double the length double resistance, triple the length triple resistance, half the length half resistance. फिर थिकनेस, थिकनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब ये कैसे तुम इमेजिन करोगे, अभी ऐसा देखो कि यू आर ड्राइविंग अ कार अगेन, ओके,
अभी सपोज दो रास्ते हैं, एक रास्ते में सिर्फ दो लेन है, दो लेन में से तुम ट्रैवल कर सकते हो, कोई भी एक लेन पकड़ के तुम जा सकते हो। और दूसरा हाईवे है, उसमें 10 लेन है, बहुत बड़ा रोड है, आराम से मतलब जगह ही जगह है। तो कौन से रोड में तुम इजीली बहुत फास्ट ट्रैवल कर सकते हो? ऑब्वियसली ऑन द 10 लेन। तो क्रॉस सेक्शन थिकनेस से क्या होता है, थिकनेस से जो वायर का जो विड्थ है वो बढ़ जाएगा, तो जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है वायर में से उसको बहुत ही बड़ा एरिया मिलेगा, उसको 10 लेन का जगह मिल गया है ट्रैवल करने के लिए। एज द थिकनेस इंक्रीजेस द डायमीटर विल आल्सो इंक्रीज, एज द डायमीटर इंक्रीजेस द क्रॉस सेक्शनल एरिया विल आल्सो इंक्रीज, हेंस द रेजिस्टेंस विल डिक्रीज। ओके, तो क्योंकि बहुत ज्यादा जगह मिल रहा है तो इजीली करंट फ्लो होगा, तो रेजिस्टेंस विल गो ऑन डिक्रीजिंग, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। ठीक है, देन टेम्परेचर, आई टोल्ड यू लास्ट टाइम, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस द करंट डिक्रीजेस। ओके, टेम्परेचर बढ़ेगा, रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ओम्स लॉ में भी उन लोग ने एक स्टेटमेंट बना के दे दिए कि द एज वोल्टेज इंक्रीजेस द करंट विल आल्सो इंक्रीज प्रोवाइडेड दैट द रेजिस्टेंस रिमेंस, टेम्परेचर रिमेंस द सेम। बेसिकली टेम्परेचर बढ़ने पे पता है क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने पे द एटम्स इनसाइड द मेटल दे विल स्टार्ट जंपिंग बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी, वाइब्रेट होने लग जाएगा, वो एक जगह पे टिकेगा नहीं। नाउ सपोज यू ड्राइविंग अ कार, ओके, और अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग खड़े, तो पहले लोग आराम से खड़े थे, दे वर नॉट मूविंग, वो लोग जंपिंग नहीं कर रहे थे, यहाँ वहाँ जंप नहीं मार रहे थे वो लोग, तो तुम गाड़ी आराम से लेके चले जाओगे। लेकिन अज्यूम करो कि वही रोड पे अभी टेम्परेचर बढ़ गया and all the atoms are jumping, now all the people are jumping, they are going from here there, someone is coming from here, someone is coming from there, so will you be able to drive a car properly over there? No, वहाँ पे कार तुम बहुत स्लो हो जाएगा। So as the temperature increases, the kinetic energy of the atoms and molecules increases, and hence their jumping capacity also increases, so therefore current will be less and resistance will be very very high। ठीक है, fine, let me just see कितना बाकी है। अच्छा, दो पेज बाकी है, so fine, so we'll finish up these 2 pages and we'll do the remaining this thing tomorrow। Okay, I'm ending the lecture over here। Abdullah,